हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने आप क्लास में विटामिन्स पढ़ाया था, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स और विटामिन ए पढ़ाया था। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको विटामिन सी पढ़ाऊंगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में नए होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स, बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं विटामिन सी। स्टूडेंट्स, मैं विटामिन सी में आपको केमिस्ट्री ऑफ विटामिन्स, देन आरडीए, देन सोर्स और बायोकेमिकल फंक्शन और साथ ही साथ में आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी से होने वाले डिसीज इसको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसको पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ विटामिन सी। Chemistry. Students, this vitamin C is also known as ascorbic acid and vitamin C water soluble vitamin होता है। Students, and this vitamin C is easily destroyed by heat and alkali. Students, ascorbic acid is strong reducing agent and this ascorbic acid, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बोहाइड्रेट के समान होता है and this vitamin C is synthesized from the glucuronic acid with the help of gluconolactone oxidase enzymes, and this gluconolactone oxidase enzymes is absent in human beings, so human cannot synthesize vitamin C or ascorbic acid. Students, अब स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ विटामिन सी। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं विटामिन सी मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सिट्रस फूड लाइक आंवला, लाइम, लेमन, देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैबेज, एंड आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। नाउ स्टूडेंट्स, आरडीए स्टूडेंट्स रिकमेंडेड डेली अलाउंस मीन्स हमको हर दिन कितना इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो विटामिन सी का आरडीए होता है मेल और फीमेल में 75 मिलीग्राम पर डे, 75 मिलीग्राम पर डे। और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में स्टूडेंट्स आरडीए होता है विटामिन सी का 100 मिलीग्राम पर डे, 100 मिलीग्राम पर डे इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। और अपना 75 मिलीग्राम पर डे होता है मेल एंड फीमेल। नाउ बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट क्यों है और कैसे बेनिफिट ये पहुंचाता है हमारे बॉडी को। तो पहला है हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन। Post translation, hydroxylation of proline and lysine, it may lead to the formation of hydroxyproline and hydroxylysine. और ये hydroxyproline and hydroxylysine is the essential for the cross linkage of the supportive tissue like the collagen, then osteoid and capillary, and it provides the tensile strength of the tissue and it also maintains the RBC membrane integrity. So hydroxylation of the proline and the lysine helpful for the formation of collagen. Second, students, tryptophan metabolism. Student, vitamin C is also helpful for the hydroxylation of the tryptophan to form serotonin, and this serotonin is the neurotransmitter in the brain. Then third, tyrosine metabolism. In tyrosine metabolism, oxidation of the para-hydroxyphenyl pyruvate to form homogenistic acid. Now, RBC maturation. Students, ascorbic acid stimulate folate reductase enzymes. Folate reductase enzymes. So, dihydrofolic acid is converted to the tetrahydrofolic acid with the help of these folate reductase enzymes, and it is helpful for the RBC maturation. Now,
bile acid synthesis. Students, this bile acid is synthesized from the cholesterol with the help of the enzyme 7-alpha hydroxylase enzymes. And this 7-alpha hydroxylase enzymes is the key enzyme for the bile synthesis. And this bile acid is synthesis with the help of this vitamin C. Now start hormone synthesis. Students, this vitamin C is also present in the adrenal cortex and it also helpful for the start hormone synthesis. Now antioxidant प्रॉपर्टी. स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में केमिस्ट्री आप एस्कॉर्बिक एसिड में मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. स्टूडेंट्स, एस्कॉर्बिक एसिड इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल मीन्स लो डेंसिटी lipoprotein and also prevent oxidation of the lens and liver from the oxidizing agent. So regular intake of vitamin C prevent the formation of cataract and also prevent the oxidation of the low density lipoprotein and prevent the formation of the erythematous plaque. So this ascorbic acid is act as a anti-atherogenic effect. Now iron absorption. Students, this ascorbic acid it maintain hemoglobin in ferrous condition means reducing state, and this reducing state ferrous condition is helpful for the iron absorption from intestine. Students, vitamin C is also show the antioxidant property. This is the biochemical functions of vitamin C. Now deficiency of ascorbic acid also known as vitamin C. Students, ascorbic acid या विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है. स्कर्वी में स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बायोकेमिकल फंक्शन में पढ़ा है. स्टूडेंट्स, विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन. तो यह कोलेजन फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि एक टेंसाइल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रदान करता है. तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है. स्कर्वी में स्टूडेंट्स गम ब्लीडिंग होता है, पेनफुल स्पॉन्जी और पल्प इज सेपरेटेड फ्रॉम द डेंटिन एंड वुंड हीलिंग इज डिलेड. स्टूडेंट, सीवियर फॉर्म ऑफ स्कर्वी में हेमरेज होता है. हेमरेज आकर फ्रॉम द रेटिना एंड कंजेक्टिवा एंड इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है स्टूडेंट्स एज ए एपिस्टेक्सिस एंड हेमेचूरिया. स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो स्कर्वी पेशेंट हैं उसमें बोन बिकम वीक और इजिली फ्रैक्चर एंड साथ ही साथ पेनफुल मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑफ द जॉइंट. इसके अलावा स्टूडेंट्स पेटेची में भी सीन ओवर द स्किन. स्टूडेंट्स, जो विटामिन सी डिफिशियंसी पेशेंट होते हैं उसमें एनीमिया भी मिल सकता है. तो एनीमिया किस टाइप का मिल सकता है? उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलता है क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर आरबीसी मैच्योरेशन और आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल करता है. तो विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा और आरबीसी मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा. तो इसकी वजह से एनीमिया होता है जो कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप्स एनीमिया होगा. स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल ओवर द विटामिन सी. स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बना सकूँ. थैंक यू स्टूडेंट्स.